students yesterday. That was BOD, biological oxygen demand or biochemical oxygen demand. It is the measurement of amount of oxygen required to remove waste organic matter from water in decomposition process. इसमें एक और term हम जोड़ सकते हैं कि amount of oxygen required to remove waste organic matter from water in decomposition process by aerobic microorganism like bacteria. I think it is the simplest definition, and by this definition, those who were 3-4 have sent me the WhatsApp. Those who were having confusion, it must be cleared. Is it clear, Angad? Just raise your hand. And one more term, I have written one more point. Low BOD indicates good water quality and vice versa. If it means what? If there is high BOD, that water will be more polluted. Low BOD means that water is quite fit for consumption. polluted, sure. Okay. Now come to next term. Yesterday in the sewage, should I remove it from the board? Okay. Yesterday in the sewage treatment plant, 2 headings were completed. Primary treatment, primary and secondary was completed. Okay. What we have studied, that after primary and secondary treatment, now the sewage which we are releasing from our domestic purpose, by our domestic purposes or from industry, the water which is being released, now this water after secondary treatment can be released in water bodies. Okay. It means that we have purified it up to that level that if we are releasing that water in rivers or any water bodies, it is not going to produce so much harm to any aquatic organism, either plant or animal. Is it clear? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अगर हमने वाटर को पानी में रिलीज कर दिया, तो अब वो नदियों में या नालों में जहां पर भी हम रिलीज करेंगे, ऐसा मान सकते हैं, या हमने पढ़ लिया तो ये समझ में आ गया होगा कि अब वो पानी बहुत ज्यादा, या हम ये कहें कि नियरली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इज इट क्लियर? अब व्हाट इज आवर थर्ड मोटो, कि instead of releasing this water into water bodies, our motto is to supply that same water to for domestic purpose. अब इसके बाद पहले तो जब सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही प्रोसेस हुआ करते थे. शिवम सिंह, अभिषेक यादव, आयुष चौबे, सोनू सिंह, switch on your video. Again and again I am repeating it. Abhishek, what is your problem? Okay. Okay, rest, if network problem is there, no problem. Rest 2-3 are there, please switch on your video, otherwise I will remove you. Now after some times it came in the minds of the people, those who are involved in this process, कि why not we should send the same water to household for their domestic use. तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद निकला, नियरली हमने उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे मैटर को मार दिया, सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिया. इसके बाद उन्होंने उस प्रोसेस में कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि दे हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आरओ यूवी ट्रीटमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स some minerals are added and now that water is fit for human consumption. Okay, let's see the notes what we have written in second tertiary treatment. See, in the last term of secondary treatment we have studied one more thing, that is biogas. Today we will discuss on that topic also. Okay, and anyhow today I have to finish this chapter, so if any doubt is there, keep it in your mind. Again I will give you time. Today anyhow I will try to give you one more time in the evening. I will tell you on WhatsApp. See, tertiary treatment, it includes use of some chemicals like chlorine, UV rays, ozone treatment and RO, after which the water released after secondary treatment is fit for human consumption. I think this is clear to everybody. There is no need of any further explanation. Chlorine tablets are used in day-to-day life also. Many people are using
it in day to day life also. Is it clear? हम अपने Yes, घरों पे sir. भी ओवरहेड टैंक में भी इसको यूज करते हैं, है ना? देखा होगा सभी ने कि ऐसा बोला जाता है कि ये हॉस्टल वगैरह में भी इट इज कॉमनली यूज कि क्लोरीन की टेबलेट है, उसको हम महीने में या 10 दिन में 15 दिन में एक बार 2-3 क्लोरीन के टेबलेट्स को पानी में डाल देते हैं, तो उससे जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज हैं उसको वो प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है. इज इट क्लियर? टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टर्शियरी ट्रीटमेंट यस्टरडे. ओके, नाउ कम. यस अंगद. सर ये ओजोन जो है हाँ ये जनरली वेरी हार्मफुल है सर, पॉइजनस है. हाँ. तो ये पानी में कैसे ये क्या करता है कि सही रहता है, उसको मिलाया क्यों जाता है? ओजोन का ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है ना कि वाटर, एक हम चैम्बर बनाया गया इसमें, उस चैम्बर के चारों तरफ ओजोन गैस है. ओके, जैसे एक पानी का पाइप है ना, उस पानी के पाइप में हमने चारों तरफ ओजोन गैस भर दिया और बीच का जो स्पेस है वो खाली है. मतलब समझ में आ रहा है कि डबल लेयर पाइप लिया हमने, उस डबल लेयर में ओजोन गैस भर दी गई और इसके बाद इसको इसके बीच में से वाटर को गुजार रहे हैं. तो जो तुम्हारा ये कंसेप्ट है कि सर ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो है ये हार्मफुल है, तो इसके इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कि उसके हार्मफुल जो उससे रेज निकल रही हैं, दैट हार्मफुल रेज मे किल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइट बी प्रेजेंट इन दैट वाटर. इज इट क्लियर? ठीक है. Okay, now come to one more important term, that is important heading, which is the last important heading of this chapter, that is biogas. Before to start, I want to ask, any of you people have seen biogas plant? किसी ने देखा है biogas plant? यस सर. देखा है? क्या होता है इसमें? वो गोबर गैस प्लांट वाला ना सर? हाँ, सेम सेम. सर वो पहले एक इनलेट होता है जहाँ पे हम डंप करते जाते हैं और वो एक बड़े से टैंक में जाके इकट्ठा होता है. उस बड़े टैंक के ऊपर एक लीड लगा होता है. वो लीड फ्री रहता है कि जैसे जैसे वो भरते जाएगा वो राइज करते जाता है. हाँ हाँ. और फिर दूसरे रास्ते से एक आउटलेट रहता है जिसमें जो सड़ा हुआ स्लज है हाँ. वो बाहर निकलता रहता है. और जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ते जाता है तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोलॉजिकली फीड करते हैं उनपे, वो कुछ गैसेस निकालते हैं जो बायोगैस कहलाते हैं और उन गैसेस की वजह से जो लीड रहता है वो ऊपर उठने लगता है. हाँ. और उठते उठते ऐसे लेवल तक आता है जहाँ से पाइप की कनेक्शन रहती है और वहां से वो बायोगैस हम यूज करते हैं इनफ्लेमेबल गैस की तरह, जिसको बर्निंग या फिर गैस हाउस की तरह यूज कर सकते हैं. ओके, जो बताया इट इज नियरली करेक्ट. हु इज शिवम सिंह? 2 times I have told you to switch on your video. Shivam Singh, Arush Singh. You people are not using your video. Abhishek, can you hear me? Arush Singh. सर Yes. अभिषेक की आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही है. Maybe he is having network problem, but Arush Singh and Shivam Singh, because these are 2 new students who are joining today. That's why again and again I am wasting my time. I don't know who are this. I am going to remove both of you because you people are not responding. Okay, now it is okay. Ultimately, I am bound to remove. I don't know who are they. Now come to biogas. Before this biogas, the things which has been explained by Angad, वो nearly ठीक है कि बायोगैस का यही कंसेप्ट है. कल भी हमने कुछ डिकम्पोजिशन के बारे में बातें की थी, जहां पर ये बात सामने आई थी, जहां पर एक एप्पल का एग्जाम्पल लिया गया था कि वो जब अगर हम उसको 15 दिन छोड़ते हैं तो वो गायब हो जाता है. गायब हो जाता है मीन्स कि इट हैज बीन ईटेन बाय सम ऑर्गेनिज्म, और जब कोई ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर रहा है तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा उसमें कुछ ना कुछ फाउल स्मेल होगी, एंड वी आर यूजिंग दैट सेम फाउल स्मेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एज अ मिक्सचर ऑफ बायोगैस. समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर जिस चीज को डिकम्पोज करना है वो एप्पल ना हो के क्या हो जा रहा है? वेस्ट मटेरियल. Okay, so why it, 2 terms are there, one is biogas and another is
गोबर गैस, ठीक है। आई थिंक कि व्हेन यू पीपल विल रिपोर्ट टू स्कूल, अगर फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आया तो यू पीपल विल एबल टू सी द बायोगैस प्लांट इन अवर स्कूल आल्सो। जो मेस से जो चीजें वेस्ट निकल रही हैं, है ना, जो बच्चों ने खा के फेंक दिया या फिर जो सब्जियों वगैरह का छिलका निकल रहा है, इससे भी हम गैस का प्रोडक्शन करते हैं। कि इसको हमने सिंपली एक टैंक में कलेक्ट किया, जब टैंक में कलेक्ट करेंगे तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे तो कुछ गैस रिलीज होगी, दैट गैस इज कॉल्ड बायोगैस। एंड इफ इन प्लेस ऑफ wastage food item, if we are using gobar, cow dung for the production of gas, it is called as gobar gas, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी भी फूड आइटम को कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज करेंगे। जब वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा तो उसके साथ साथ गैसेस भी रिलीज होंगी, एंड दैट गैसेस आर यूज्ड एज फ्यूल। ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो देवस्थली में जितनी स्ट्रीट लाइट्स जलती थी वो इसी से जलती थी। अभी तो नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल बायोगैस प्लांट नियर बाई मेस, इन बिटवीन मेस एंड दैट डेयरी। सर आप वो दोबारा बोलेंगे सर, क्या जो आप देवस्थली की लाइट्स बोले? जब मैं यहाँ पढ़ता था तो देवस्थली में जो लाइट्स जलती थी वो इसी बायोगैस प्लांट से जलती थी। तो सर पहले तो लाइट था जलती थी। हाँ जी, देवस्थली लाइट में। जलती है, खाना बनता है। तो अभी सर नहीं है। दिखाए क्यों नहीं सर? अच्छा अरे अभी नहीं देवी जी। सर ठीक। हाँ, ये लाइट मतलब फ्लेम की वजह से लाइट, या फिर हम लोग इस गैस को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी? नहीं नहीं नहीं, ये जिस लाइट की बात है ये तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। एक लाइट, एक रोशनी के लिए एक हम Halogen. इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको पेट्रोमैक्स बोलते हैं। हाउ Yes, मेनी sir. ऑफ यू हैव सीन द पेट्रोमैक्स? आई हैव सीन इट। Yes, sir. चलिए कुछ तो हाथ Sir, उठा रहे हैं। तो पेट्रोमैक्स sir, में देखा होगा in- एक छोटा सा झाली की तरह होता है जिसको नीचे लगाते Bulb. हैं Yes, sir. और गैस से उसमें लाइटिंग होती है, देखा है? यस सर, यस सर, यस वही सर। कंसेप्ट पे यहाँ लाइट्स जलती थी, ओह, ठीक है। दैट फ्यूल एनर्जी वाज कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। हर जगह पहले यही था, बट अभी मे बी कि आगे भी हो जाए, लेकिन अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज दैट प्लांट इन्वॉल्व्स मोर देन 20 लाख ऑफ एक्सपेंडिचर। थोड़ा महंगा है। वाओ, सस्ता है देवस्थली का। सस्ता है बट नॉट इन द करेंट सिचुएशन, इस समय के लिए नहीं सस्ता है। ओके, नाउ कम टू बायोगैस। Before to start, one key diagram is given in your book. Keep that diagram in front of you so that you people will be able to understand. See what it is given. It is a mixture of methane, carbon dioxide and nitrogen. A group of bacteria which are involved in biogas are called as methanogens. Okay, so one term is methanogens, means methane producing bacteria. Some names have been given like Methylophilus, Methylotropus, methanogens, etc. The biogas technology in India was developed by IARI and KVIC. Both are the Indian agencies which work for improvement of agriculture and products related to agriculture. ये Indian agencies हैं. Biogas plant include a large tank of 10 to 15 feet deep called as digester. Now see the diagram. One large tank is there. This tank is called as digester. Okay, two small tanks in which cow dung in one. See the diagram. Two small tanks are, one tank is here and one tank is here. In this tank we are mixing dung plus वाटर। ओके, यहां पर हमने मिक्स किया। इस टैंक से एक पाइप निकला जो नीचे की तरफ आके मिक्स हुआ, कहां पर? डाइजेस्टर पे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर? Sir, because
हाँ, because simply if we will listen, go through the definition of digestion कि breaking of complex food into simpler form. तो smaller, यहाँ पर भी that cow dung is used as food. अब यह है कि ये हमारा फूड ना होके it is the food of microorganisms which are helping in decomposition. It is clear? yes sir. अब थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना है कि देखो जो बुक में डायग्राम बना होगा, एक जो इससे पाइप आया ये डाइजेस्टर में नीचे की तरफ आके मिक्स हो रहा है ना, और यहां से जो पाइप निकल रहा है ये ऊपर की तरफ से निकल रहा है, ऐसा है डायग्राम? नहीं सर, थोड़ा गलती हो गया है, देखो फिर से। सही है सर। सर स्लज वाला जो है ना सर, लास्ट और जो दूसरा वाला डब्बा है, हाँ, उसमें थोड़ा मैं दिखा रहा है तो ही सर। अरे मेरे पास है डायग्राम सामने सर। तो ये ऊपर से नीचे आया है सर। कहाँ स्लज में अरे तो ऊपर से वही ना नीचे बात है? है। ये ऐसा ही तो बना रहे बहुत है, तो इसमें ये पाइप ऐसा बना हुआ है। हाँ सर वही बात है, अबे सेम वही बेवकूफ। बात है। आम को ऐसे करके खाओ, उसका टिप ऊपर रहे, या उसको उल्टा कर दो टिप नीचे आ जाए, वो तो टेस्ट वैसा ही लगेगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स। ओके, अब थोड़ा इस पे आए कि ये ऐसा क्यों है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के देखो कि यहाँ जो हम फ्रेश, इसको हम जो चीज यहाँ मिक्स करते हैं आफ्टरवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज स्लरी। व्हेन वी आर मिक्सिंग काउ डंग विद वाटर, द सेम पैटर्न वी कैन ऑप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑल्सो। कि अब वहां पर हम काउ डंग न डाल के वेस्ट डालेंगे और प्रोसेस विल बी सेम। इट इज कॉल्ड एज स्लरी। ओके, yes sir. now this mixture is coming in the bottom of this digester. ये इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों ऐसा है? इसको हम सीधे यहाँ क्यों नहीं मिक्स कर दे रहे हैं? इसको यहाँ क्यों नहीं मिक्स कर दे रहे हैं? सर बोलो सर। नहीं, पहले माइक म्यूट करो, घर में तुम्हारे कोई झगड़ा कर रहा है पीछे। ओके, एनीबॉडी एल्स? यस सर। सर जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी ओके, नाउ लिसन, देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम विद श्रेया आल्सो। अगर हम इसको हम नीचे इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सपोज करो कि हमने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी कलेक्टेड इन दिस चैम्बर। लेकिन यहाँ से क्या फायदा होगा कि जो फ्रेश स्लरी आएगी वो नीचे होती जाएगी, नीचे होगी तो इसको डिकम्पोजिशन या डाइजेशन के लिए टाइम मिलेगा। सपोज करो कि अभी जो स्लरी आई वो यहाँ आ गई, यहाँ पर ऊपर एक जैसे प्रेशर कुकर में लगा हुआ है सीटी, वही कंसेप्ट यहाँ होता है कि अब जैसे ही इसका डिकम्पोजिशन शुरू होगा सम गैसेस विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस। ये जो लीड है इट इज मूवेबल बट इट इज नॉट इजीली मूवेबल। ये इसीलिए बना है ताकि इस गैस के ऊपर ये प्रेशर बनाए रखे, ठीक है। और इसी लीड से एक आउटलेट पाइप निकला होता है। जब इस लीड में गैस, जब इतने एरिया में गैस अच्छी खासी कलेक्ट हो गई तो यहाँ पर एक नोजल है, इस नोजल को हम ओपन कर देते हैं, इससे पाइप से गैस बाहर जाने लगती है। ये लीड मूवेबल क्यों यूज की गई कि सपोज करो कि हमें इस गैस की जरूरत नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये लीड ऊपर आती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये यहाँ आ जाएगी तो इसमें जो गैस है वो गैसेस भी बाहर निकल जाएंगी ताकि हमारा ये जो डाइजेस्टर का टैंक है ये खराब नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्सेसिव गैस का प्रोडक्शन हो गया, लीड मूव नहीं करेगी तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि ये गैस टैंक ब्रेक कर जाए। इज इट क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड। अब मुझे क्या बताना है कि ये फ्रेश स्लरी यहाँ आई, ये डिकम्पोज हुई, डिकम्पोज होने के बाद जैसे जैसे ये डिकम्पोज होती जाती है ये हल्की होती जाती है। इसमें का ऑर्गेनिक मैटर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करने लगते हैं तो इसका वेट लॉस होता जाता है। वेट लॉस होता जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, पहला। और दूसरा क्या कि जो फ्रेश आएगा उसमें वेट ज्यादा है, तो अगर ये इसका थोड़ा सा भी वेट कम हुआ और फ्रेश वाले का वेट ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ये नीचे आएगा इसको ये ऊपर ढकेलेगा। और
ये जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता गया, इट मीन्स कि वॉट एवर द ऑर्गेनिक मैटर वॉज प्रेजेंट इन दिस काउ डंग इट हैज बीन यूटिलाइज्ड। जब ये इतना ऊपर आ जाएगा, यानी कि जब ये पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये जो है ये यहां पर कलेक्ट हो जाएगा, ओके, इन द न्यू चैम्बर विच इज नाउ कॉल्ड एज स्लज। और इस स्लज को हम यहां से निकालेंगे और अपने खेतों में यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स। ठीक है, देखा होगा गांव वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, गोबर की खाद बहुत वैल्यूएबल है, अब तो मार्केट में भी बिकती है। तो इससे हमने इस गोबर में जितना भी चीज थी, जो भी चीजें थी, हमने उसको पूरी तरीके से यूज कर लिया, उसमें की गैस को भी यूज कर लिया, और उसके बाद जो बचा उसको हमने वी आर यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स। प्रवीण, अनम्यूट योर माइक। अगेन एंड अगेन यू आर लुकिंग अपवर्ड्स, बार बार ऊपर देख रहे हो, कोई है क्या ऊपर? नो सर, ऊपर देख लेना, कोई बालकनी में बैठ के पढ़ेगा तो ऊपर कोई हो सकता है जो ऊपर से पढ़ रहा हो। दीक्षा, Yes, sir. where you are sitting, in balcony or in room? In room, sir. Good. Where is आकृति? हाँ Yes, आकृति, आप कहाँ हैं? सर रूम में ही है। हाँ ठीक है, रूम में तो अच्छा नेटवर्क आ रहा है यार, फिर बाहर क्यों बैठती हो? अरे बच्चे हल्ला करते हैं सर, बताई नहीं थी। ओके, मतलब ये पहला केस है जहां बाहर हल्ला नहीं होता है, घर के अंदर हल्ला हो रहा है। ये संगत, मतलब मैं भी एडमिट कर रहा हूँ, मेरे साथ भी सेम कंडीशन है, घर पे हल्ला होता है, बाहर नहीं। ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। मैं थोड़ा फोकस करके इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर भविष्य में कभी आप लोग में से कोई डेयरी प्रोजेक्ट की तरफ जाता है, क्योंकि इट इज अ इमर्जिंग प्रोजेक्ट, फायदेमंद प्रोजेक्ट है, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है और थोड़ा रिस्की भी है, तो डेयरी से हमें कंप्लीट फायदा तभी मिलेगा जब हम इन चीजों का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे डेयरी में अगर देखा होगा, लास्ट हो सकता है अभी आप लोगों ने नहीं देखा, हमारे डेयरी में एक मशीन आई है जिसमें हम काउडंग को डाल रहे हैं, तो दैट यस सर, देखा है। दैट मशीन इज प्रोड्यूसिंग वुड्स, उसमें हम गोबर को डाल रहे हैं और वो सामने से लकड़ी बना रही है। हाँ ठीक सर, है, देखे। तो उसको और मॉडर्नाइज किया जा सकता है कि हम डायरेक्ट उसमें गोबर न डालें, पहले हम गोबर को इस प्लांट में डालें, उसके गैस को यूज कर लें, और उसके बाद जो स्लज यहाँ से निकला, इस स्लज को यूज कर लें वुड बनाने के लिए। ऐसा भी कर सकते हैं, बट इस केस में थोड़ी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो गैसेज उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट गैसेज आर हेल्पिंग इन बर्निंग, बट देन ऑल्सो बाई दिस प्रोसेस ऑल्सो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग wood by the sludge only, then also it will be helpful in burning. ऐसा नहीं है कि वो जलेगा नहीं। Okay, now come to one more topic, that is microbes as biocontrol agent. Listen carefully. The most common microbe used as biopesticide is Bacillus thuringiensis. In the beginning itself I have told you that there will be one topic in which you people will feel confusion. The same topic is this. The most common microbes used as biopesticides. Biopesticides means what? Pesticide means? Animals. Pesticides means chemicals which are used to kill various pests. Okay. If in place of chemicals we are using living organism to control other living organism, that is called as biopesticides. समझ में आ रहा है? जैसे एक बहुत कॉमन आजकल यूज हो रहा है, एक फिश का लार्वा है, दैट इज कॉल्ड एज गैम्बूसिया फिश, GAMBUSIA। इस गैम्बूसिया फिश की खास बात क्या है कि इसको हम आसानी से नालियों में रख सकते हैं। कौन सी नालियों में? जो हमारे घरों के आसपास हैं। और इस फिश का जो लार्वा है, या जो ये फिश है, ये मॉस्किटो के लार्वा को फीड करती है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा मछली के लिए तो हमारे लिए नहीं कोई फायदा होगा कि अब हम उस मछली, वो बहुत छोटी साइज की मछलियां हैं, लेकिन हमारी नालियों में जो एक मेजर इशू है कि अगर वाटर इज कलेक्टेड तो वेरी इजीली मॉस्किटोज
इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, उस केस में ये फिश जो है ये उस लार्वा को कंज्यूम कर जाती है। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट हम बायोपेस्टिसाइड में भी यूज करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के रोकथाम के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोपेस्टिसाइड, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर killing or controlling other living organism. Is it clear? Okay, now see what is there. One term is there, Bacillus thuringiensis. अब अभी बता दे रहा हूं कि इस टर्म को याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटी, Bacillus thuringiensis। एक पूरा चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ इसी Bacillus thuringiensis के इर्द गिर्द घूमेंगे। पूरे 2 चैप्टर्स हैं, एक यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी विच इंक्लूड्स 2 चैप्टर्स, एंड दैट बोथ चैप्टर्स विल कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड दिस बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis। ओके, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसा हम बोलते हैं, बुक में दिखेगा, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहा है Bacillus thuringiensis के लिए। ओके, we will discuss in detail about this bacteria. It contains a special gene called cry gene which produces cry protein which kills larva of many insects. क्या यहाँ जानना है? 5 minutes is remaining. Listen carefully. कि ये जो बैक्टीरिया है Bacillus thuringiensis, इस बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर्टी है that is insecticidal property. ये बैक्टीरिया आसानी से इंसेक्ट्स को मार सकता है। कैसे मारता है? इस बैक्टीरिया में this bacteria contains a special gene which is called as cry gene. Cry means crystal. बहुत परेशान नहीं होना है, we will discuss in detail, but then also this bacteria contains a cry gene. That cry gene produces a protein called as crystal protein. Diksha, mute your mic. From this crystal protein, अब हम क्या करते हैं कि हमने इस बैक्टीरिया के इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी प्लांट में, ठीक है, यानी अब उस प्लांट के पास ये क्राई जीन ऐड हो गया। अब इस प्लांट को अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, ये दिखाई दे रहा है ना, इस प्लांट को अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो क्राई जीन इस प्लांट में पहले से था, ये क्राई जीन इस बैक्टीरिया के इंटेस्टाइन पे अटैक करके इनमें पोर्स क्रिएट कर देता है। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया था, ये विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दिस बैक्टीरिया विल डाई ऑफ। बात समझ में आई? सना, श्रेया? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसके जीन को निकालेंगे, कैसे प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अभी हमें क्या जानना है कि वन बैक्टीरिया इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज Bacillus thuringiensis. This bacteria contains a special gene that is called as cry gene. That cry gene is responsible for producing a protein which is called as crystal protein or cry protein. Okay, and this protein has insecticidal property. It creates pores in the intestine of bacteria which is attacking that plant. समझ में आया? तो यहाँ पर हम इस BT का यूज कर रहे हैं एज ए बायोपेस्टिसाइड्स. That's why we have studied the heading microbes as biocontrol agent. Clear है? Okay. And last one more heading is there which you people can study yourself, that is microbes as biofertilizers. ये class 6 से पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं especially which are present in leguminous plant. Leguminous plant means दलहनी पौधे, दलहनी फसल जो होती है, जो दाल जिनसे दाल मिलता है। हम ये बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं कि उनके रूट्स में रूट नोड्यूल होते हैं। क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है कैसे रूट नोड्यूल बनता है, कैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर कोई भूल गया हो तो क्लास 11th की बुक से देख लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. Okay, that same term is there. That's why in class 12th it is given in very brief that microbes are used as
biofertilizers also. Now if any doubt is there, you may ask. It is clear? Yes, sir. Okay. As far as next chapter is concerned, I am not going to start any new chapter in the upcoming 3-4 days. The reason behind this is that ki meeting is going on, maybe ki few chapters will be deleted from your syllabus. तो हम इतनी मेहनत करके पढ़ाएं और अगर कोई चैप्टर हटा दिया जाए तो yours and mine both time will be wasted. Then what Yes. we will be doing in mid, sir? In next 2-3 days, means up to 25th. Today is 22nd, 23rd. Up to 25th, I am going to wait for that. In that term, in that sessions, we will discuss about some other things, Sir. like your doubts and other things. Yes, Angad. Hardly 1 minute is remaining. सर आप मॉक टेस्ट कराइए सर, आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए हमारे लिए. I am planning for that. Yes, sir. Next 2-3 days, I will do something other than this और वो- academic वो activities YouTube पे- because 3 chapters have been completed. We are up to the mark. There is no issue of syllabus. हम बिल्कुल ठीक स्पीड में चल रहे हैं. स्कूल खुले न खुले हमारी स्पीड ठीक है. Within time your syllabus will be finished. It is clear. Okay. So wait for next 2-3 days. After 25th we